Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlawat, and today we'll continue with our topic, that is chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. This is our lecture number 2 on this topic. Okay. Now, before we start with the topic, a brief recapitulation what we have done yesterday. See, we have talked about that the structure of DNA contains a large number of nucleotides. Okay, the structure of DNA contains large number of nucleotides. Okay, and a nucleotide basically has three parts. One is the phosphate molecule, second is the sugar, and third is the nitrogen base. These three together they make up the nucleotide. Okay, these three together they make up the nucleotide. And if there is only sugar, these two are there, then we call it as nucleotide. What do we call it as? Nucleoside, right? If there are only these two, we call it as nucleoside, and these three, they are together called nucleotide. So DNA molecule contains a large number of nucleotides. Clear? And what are the components of nucleotide? Three components: phosphate molecule, deoxyribose sugar, and the nitrogen base. And sugar plus nitrogen base is called as nucleoside. Okay, students, I hope you are clear with the nucleotide and nucleoside. Nucleoside means two components. Nucleotide means all the three components together, right? Now let's see the structure of DNA. See, this is a structure of DNA which is called a polynucleotide chain. Okay, it is called polynucleotide chain, right? It is called polynucleotide chain. See, this is your phosphate group, right? Then this is your pentose sugar, deoxyribose sugar, and this is your nitrogen base. So if you look at this, the structure, the backbone is made up of phosphate and sugar. This backbone, this straight chain is made up of backbone and sugar. And nitrogen base, they are projecting outside. ठीक है, जो हमारी चेन की बैकबोन है वो हमारी फॉस्फेट ग्रुप और हमारी पेंटोज शुगर से बनी हुई है. ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन बेस है वो इससे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहा है. क्लियर? सो दिस इज योर वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज योर थर्ड न्यूक्लियोटाइड, isn't it? This is your fourth nucleotide. So basically here there is a chain is indicated where 4 nucleotides are attached with each other. Okay, 4 nucleotides, they are attached with each other. ठीक है? Now in this structure at 5 prime position we have phosphate group, and at 3 prime position we have hydroxyl group. ठीक है, 5 प्राइम पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप है और 3 प्राइम पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए. सो इन दिस मैनर अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड विद ईच अदर and that forms DNA. Now coming to the nucleic acids, yesterday also we have discussed the nucleic acids. There are two types, RNA and DNA, right? 3 components, nitrogen base, they are of 2 types, purine and pyrimidine. Sugar again is of 2 types, deoxyribose and ribose. Deoxyribose is present in DNA and ribose sugar is present in RNA. And phosphate plus nucleoside will be called as nucleotide. Okay, and nucleoside is equal to the pentose sugar plus the nitrogenous base. Okay, सो आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दोनों बहुत क्लियर होने चाहिए. देयर शुड बी नो डाउट इन दैट, राइट? ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट वी स्टडी टुडे, दिस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय जेम्स वॉटसन एंड क्रिक, एंड in 1962 they were awarded the Nobel Prize. See, these two scientists, they have discovered the structure of DNA, and it is considered to be a very, very important discovery in the genetics. Okay, clear? This is a very important discovery, and that is why they were awarded Nobel Prize. Now, when they proposed the structure, they basically used Arvind Chargaff's data from his 1940s and early 1950s.
जब इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया तो इन्होंने जो है एरविन चारगफ का डाटा यूज़ किया, दैट ही प्रोजेक्टेड इन 1940s एंड 50s। उसमें एक चारगाफ रूल भी था। चारगाफ रूल ये कहता है, दिस रूल स्टेट्स दैट द परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ टी। ए मीन्स योर एडेनिन and T means your thymine. So percentage of adenine is always equal to percentage of adenine. ठीक है, and the percentage of guanine is equal to the percentage of guanine is equal to the percentage of C, that is cytosine. ठीक है, A will be equal to T and G will be equal to C. This is called Chargaff's rule. This is called Chargaff's rule. Okay. Now Watson Crick they proposed this picture. They proposed this kind of structure. जब उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया तो उन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस पिक्चर से ये पॉसिबल है कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो बेसिस के बीच में डिस्टेंस जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। लेंथ ऑफ दी हेलिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हेलिकल का राइज मतलब डिस्टॉर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 36 डिग्री पर ये डिस्टॉर्ट होता है, ये राउंड लेता है। So 3 things could be possible from the picture itself. Now again we'll discuss the Chargaff rule. Chargaff rule ये कहता है कि A हमेशा T के साथ पेयर होगा। A will always be paired with T और A और T के साथ जो है ये डबल पेयर्ड होगा। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, this bonding will be double. They are connected with each other by 2 hydrogen bonds and G and C they are connected with each other by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय 3 ट्रिपल बॉन्ड्स यू कैन से। सो इन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके, ए एंड टी के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी और सी के बीच में है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम ए बाई टी की रेशो निकालते हैं, राइट, ए अपॉन टी की अगर हम रेशो कैलकुलेट करते हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सेम वे अगर हम जी बाय सी की रेशो कैलकुलेट करते हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ओके, तो चारगॉफ रूल ये कहता है कि ए हमेशा टी के साथ पेयर होगा, जी हमेशा सी के साथ पेयर होगा और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पेयरिंग होगी और ए और टी की रेशो 1 होगी, जी और सी की रेशो भी 1 होगी। क्लियर है? मीन्स अगर हमारे पास ए 40% है, सपोज ए इज़ 40%, सो टी विल ऑल्सो बी 40%। क्लियर? देयर रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। Now, they said that the 2 strands of DNA are anti-parallel. उन्होंने कहा जो DNA है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, और ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल मीन्स देखिए जो पहला स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम जाता है, इट रन्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट द सेकेंड स्ट्रैंड ऑलवेज गोज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मतलब अगर ये पैरेलल होता तो ये भी 5 प्राइम होता और ये भी 5 प्राइम होता, बट दे आर अपोजिट। ओके, दैट इज़ वाई दे आर एंटी पैरेलल। सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है। सो द 2 strands ऑफ द DNA आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट, दीज 2 strands ऑफ DNA आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो 2 strands हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड कि डीएनए के केस में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का क्या मीनिंग है। देखिए ये हमारा पहला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकेंड विल गो फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। सपोज करिए यहाँ पर हमारे बेसिस हैं ए, जी, सी, ए, टी। ओके, ए विल ऑलवेज पेयर विद टी, सो हियर you will have T. G will always pair with C. C will always pair with G. A will always pair with T. T will always pair with A. ठीक है, अगर हमें एक स्ट्रैंड के बेसिस पता है, अगर हमें फर्स्ट स्ट्रैंड के बेसिस पता है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्ट्रैंड के अगर हमें बेसिस पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हम सेकेंड स्ट्रैंड पे लिखते हैं। सेकेंड स्ट्रैंड जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग क्लियर हो गया सबको। आगे चलें अब हम।
Okay, let's go further. Now if you look at the DNA, see this is the structure or diagram that I have taken from NCERT. NCERT में ये डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको देखिए, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, तो ये DNA का स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम. देखिए ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका पेंटोज शुगर, एंड दिस इज योर A, दैट इज एडेनिन, और यहाँ आपकी पेयरिंग हो रही है T के साथ. सो ये 1 स्ट्रैंड है, ये 2nd स्ट्रैंड है. सो देयर आर 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, और पेयरिंग आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं. आर यू एबल टू सी? एक बार दोबारा देखते हैं. देखिए जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए A है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पे यहाँ पर T है, और दोनों के बीच में देखिए बॉन्डिंग डबल बॉन्ड है. यहाँ पर A है तो यहाँ पर T है, दोनों के बीच बॉन्डिंग अगेन डबल बॉन्डिंग है. ये देखिए G एंड C अगेन हेयर दी बॉन्डिंग इज ट्रिपल बॉन्डिंग. ठीक है, और अगेन ये G एंड C अगेन ट्रिपल बॉन्डिंग. सो दीज आर योर डॉटेड लाइन्स जो इंडिकेटेड हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ओके, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल हैं. ठीक है, एंटी पैरेलल हैं. और बेस पेयरिंग, A हमेशा T से पेयर होगा, T हमेशा A से, G will always pair with C and C will always pair with G. Okay, this is your figure number 6.2 in the NCERT. तो आप देख सकते हैं DNA जो है आपकी पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेंज है, डबल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसा कि चारगाफ ने, ठीक है, जैसा कि क्रिक एंड वाटसन ने प्रपोज किया था. ओके, सी अगेन दिस इज योर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स. ये आपके बेस पेयरिंग है, देखिए आप देख सकते हैं. ये येलो जो है वो एडेनिन है, एंड ग्रीन इज थायमीन, ऑरेंज इज ग्वानिन, एंड साइटोसिन इज रेड. तो ये आपकी शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई, जो कर्ल्स बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, एंड बेसिस दे आर प्रोजेक्टिंग outward and they are connecting with each other. Now some of the salient features of DNA, again they are very very important. From the board point of view, you can be asked to write the important characteristics of DNA. So you need to remember this. The first is, it is made up of 2 polynucleotide chains. DNA में जो है 2 polynucleotide chains होती हैं. ठीक है, बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट की, और आपके बेसिस दे प्रोजेक्ट इनसाइड. ठीक है, बेसिस आपके प्रोजेक्ट करते हैं, और बैकबोन जो है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है. दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, एंड द सेकेंड गोज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम. थर्ड, 2 बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, सो एडेनिन और थायोसिन के बीच में बॉन्डिंग होगी, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्डिंग होगी, एंड दैट विल बी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसा अभी मैंने डिस्कस किया है, तो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. ठीक है, एक रिजल्ट जो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से पेयर करेगा. प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन, प्यूरिन विल ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडीन. ठीक है, और 2 चेन्स जो हैं ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड है. ये जो 2 चेन्स हैं दे आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, और जो हेलिक्स की पिच है दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स, दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स. ठीक है, एंड दे आर रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न. जब तक आपका DNA एक टर्न लेता है, it basically contains 10 base pairs per turn. So between 2 bases there is a distance of 0.34 nanometers. So 2 base pairs के बीच में जो distance है वो 0.34 nanometers का है. ठीक है, जो ये bases attached हैं, जो बेसिस अटैच्ड हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दिस अटैचमेंट की वजह से ये हेलिकल स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल है. ठीक है, जो हमारे बेसिस हैं वो अटैच्ड हैं,
and these bases, they have hydrogen bonding with them, and because of the hydrogen bonding, this DNA structure of the DNA is highly stable. Okay, structure of DNA is highly stable. So this provides stability to DNA. Okay students, I think everybody has understood. चलिए फिर आज हम होम इतना ही करते हैं. We'll finish this much only, and now let's come to the homework. First of all, you'll make, as you can see, the notes of the topic, and you will read the page number 96 and 97. You will underline all these points, because all these points, they are given in the NCERT itself. And you be ready for the test. On Monday we'll have the test, isn't it? Monday we have a date, so you will have test, and I'll be giving you the full complete chapter 5 will be coming now. Since I'm telling you in advance, so it will be on Monday. Okay, clear? Okay, bye everyone.